My dear English language users, let us start writing 100% correct English. Let us start speaking 100% correct English. Correct English, that is one of the distinguishing features of an educated person, an intelligent person, because you are aware of your responsibilities. When you are aware of your responsibilities, then you do not commit mistakes. When you are aware of your responsibilities, you do not commit mistakes. So if you are aware of your responsibilities, then it means that we have to keep in mind that I will not make any grammatical mistake, and it is under our control. It is under our control. We can do it because it is not difficult. बगैर गलती के इंग्लिश लिखना या बोलना जो है ये मुमकिन है. It is possible. Only two things are required: parts of speech and parts of sentence. आप अगर ये वादा करें कि मैं कभी भी अंग्रेजी में गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी लिखने में और बोलने में, so you can do it. It is possible. How it is possible? We see millions of pages are published daily and there are no grammatical mistakes. करोड़ों पेजेस आप देखते हैं, डॉन है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, अल जजीरा है, बीबीसी है, CNN है. तो रोजाना जो है वो करोड़ों पेजेस लोग इंग्लिश लिखते हैं, उसमें एक गलती भी नहीं होती. इट डिपेंड्स क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट्स. यू एग्री, यू डोंट एग्री. एकेडेमिकली उनके आर्गुमेंट्स कैसे हैं, ज्यादा क्वालिटी वाली है, कम क्वालिटी वाली है, दैट इज डिबेटेबल. बट देयर इज नो मिस्टेक. सो व्हेन वी फोकस ऑन parts of speech and parts of sentence, our English is 100% correct. Now, there may be some impossible things. For example, I cannot fly. There are impossible things. We can't say that nothing is impossible. Maybe science gives us one day a battery that I can fly, but for the time being, I cannot fly. My English cannot be like English of Shakespeare. It is not possible. But my English can be 100% correct. This is possible. I should know my limits. बंदे को अपने हुदूद का, अपने औकात का पता होना चाहिए. मैं शेक्सपियर की तरह इंग्लिश तो नहीं लिख सकता, लेकिन मेरी इंग्लिश जो है वो 100% करेक्ट हो सकती है. This is possible. One of the area where we make a lot of mistakes, that is subject-verb agreement. Subject-verb agreement. Why? Because English follows SVO. SVO. Subject-verb object. Sometimes there is no object, and subject and verb, that is must for any sentence. Implied or clear, but there is always subject and verb. Now SVO, that is the structure of English sentence: subject, verb, object. Sometimes there is no object. For example, I read. There is no object. When I say I read a book, then book is object. In Urdu, we have SOV. In English, in Urdu, we have SOV. In Urdu में उल्टा है SOV. Subject, object, verb. मैं किताब पढ़ता हूँ. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर
वर्ब आता है. English has SVO structure of sentences. English with capital E because English is proper noun. No mistake. No mistake of any type. किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं, गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है. So in Urdu we have SOV, while in English we have SVO. Subject verb agreement. Subject and verb are must, whether implied or clear. Implied. IMPLIED. Urdu with capital U, because Urdu is proper noun. English is proper noun. Capital English, capital E. No mistakes of any type. Any type. So we say implied, for example, read. When it is imperative sentence, read, पढ़ो. Imperative, order, request. Read, come, sit. There is no subject, but it is implied. Implied means hidden, छुपा हुआ. इसके अंदर जो है सब्जेक्ट जो है वो क्या है? दैट इज हिडन, इम्प्लाइड. आई रीड, मैं पढ़ता हूं. हियर आई इज क्लियर. यू रीड, यू इज क्लियर. तो यू जो है वो सब्जेक्ट है, रीड जो है वो वर्ब है. इसके बगैर सेंटेंस हो ही नहीं सकता. और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी फजूल किस्म का है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब फाइल और फेल, काम करने वाले का और काम के दरमियान जो रिश्ता है, जो एग्रीमेंट है, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड. वो बहुत पेचीदा है और इसमें हम बहुत गलतियां करते हैं. दैट्स वाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज हाईली एसेंशियल. कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान रिश्ता कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों तो हर सेंटेंस में होते हैं और दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दे आर इंटरडिपेंडेंट. सो इट इज इम्प्लाइड. Implied means it is hidden, it is supposed, it should be there. Supposed, hidden, it is the same thing. When we suppose something, it means that it is there, but it is not clear. Now, we come to the subject verb. इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है, they are mutually dependent. They are interdependent. सब्जेक्ट और वर्ब का जो है रिश्ता है, उर्दू में भी है, हर जबान में है. मैं खाता हूं. अगर मैं मर्द हूं, मैं खाता हूं. अगर मैं औरत हूं, मैं खाती हूं. तो खाता, खाती, वो चेंज हो जाता है. करने वाला कौन है, फाइल कौन सा है, सब्जेक्ट कौन है, ये हर जबान में है. इंग्लिश में इसलिए ज्यादा है कि इंग्लिश में गो, गोज और इस तरह की चीजें हैं. कुछ जबानों में, स्पेनिश, जब मैं स्पेनिश सीख रहा था, मेरा दिमाग इसने खराब किया था, क्योंकि स्पेनिश में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अब इंग्लिश में आई गो, दे गो, यू गो, वी गो, सिर्फ ही, शी, इट के साथ चेंज होता है. ही गोज, शी गोज, इट गोज. लेकिन स्पेनिश में हर प्रोनाउन के साथ चेंज होता है. हर प्रोनाउन के साथ अपना वर्ब है. मैं जाता हूं और वो जाते हैं और हम जाते हैं. तो उर्दू में भी इतना फर्क नहीं है, स्पेनिश में बहुत ज्यादा है. Yo voy, nosotros vamos.
एजोस बान, तो वो बिल्कुल जो है वर्ब जो है वो फेल के साथ मुकम्मल चेंज हो जाता है, तो बहुत पेचीदा है। इंग्लिश में पेचीदगी है लेकिन इतनी नहीं है जितनी स्पेनिश में है या फ्रेंच में है। फ्रेंच और स्पेनिश में बहुत पेचीदगियां है। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में गड़बड़ कहाँ हो जाती है? गड़बड़ तब होती है जब हमें पता नहीं होता कि सब्जेक्ट किधर है, कौन से वाला सब्जेक्ट के बारे में हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। कंफ्यूजन वहां बनता है। ये तो सिंपल है कि आई गो, ही गोज। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ वर्ब आएगा गो। ही सब्जेक्ट है, ही के साथ वर्ब आएगा गोज। ही गोज, आई गो। ये सिंपल एग्जाम्पल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। लेकिन जब मैं कहता हूं कि वन ऑफ दीज मेन wear a blue shirt, please write this example. In daily exam you will be having now sentences to correct, so be careful. One of these men wear a blue shirt. इन लोगों में से एक, इन बंदों में से एक बंदा जो है उसका शर्ट ब्लू है। कंफ्यूजन यहां आ जाता है क्योंकि यहां मेन है, आदमी, वन है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये जो वर्ब है वियर, वियर वर्ब है, ये किसके साथ लगेगा? वन के साथ लगेगा या मेन के साथ लगेगा? अब यह इंटेलिजेंस का गेम शुरू होता है। तो जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो समझता है कि यार ये शर्ट जो है ये वन के लिए है, मेन के लिए नहीं है। तो इसमें से करेक्ट जो होगा वो वियर्स है। वन ऑफ दीज मेन वियर्स अ ब्लू शर्ट, क्योंकि वन जो है वो ही शी इट है, तो ही शी इट के साथ वियर्स आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वन ऑफ दीज मेन wears a blue shirt। अब जो सुस किस्म का बंदा है जिसका एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, जो हमने कल एलपीसीएस में पढ़े एनालिटिकल स्किल्स, वो एनालिसिस नहीं कर सकता, वो तज्जिया नहीं कर सकता, वो मोटी मोटी चीजें देखता है, उसको बड़ी बड़ी चीजें नजर आती है, छोटी छोटी नजर नहीं आती, डिटेल्स में नहीं जाता। तो पेपर में होगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन ऑफ दीज मेन wear a blue shirt। वो कहने इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, मेन प्लूरल है तो मेन के साथ जो है वो wear आएगा। Now I have told you that there are two types of English grammar, descriptive and prescriptive। Two types of English grammar। अंग्रेजी की दो किस्म के ग्रामर है, एक को कहते हैं परस्क्रिप्टिव, एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। परस्क्रिप्टिव निकला है prescribe। prescribe का मतलब है नुस्खा देना, तजवीज करना। डॉक्टर ने दवाई का नुस्खा दे दिया, डॉक्टर prescribed मेडिसिन। परस्क्रिप्टिव, परस्क्रिप्टिव का मतलब है कि बस आपने ये दवाई खानी है, ज्यादा पूछो मत कि ये दवाई क्या है, तो कैसी है, तो क्यों है। नो क्वेश्चंस, जस्ट डू इट। तो देयर इज नो लॉजिक व्हाई आई गो एंड ही गोज, बिकॉज इट इज परस्क्रिप्टिव ग्रामर। कोई भी आपसे पूछ सकता है जी उर्दू में, अगर आपका उर्दू आपकी जबान है, ये वो कहता है और वो कहती है, क्या चक्कर है? औरत ने कौन सा गुनाह किया है कि वो कहती है और मर्द कहता है? वह है। तो जिनको उर्दू नहीं आती फिर वो कहता है घोड़ा घास खाता है, फिर वो गलतियां करते हैं। अब पश्तो वाले जब उर्दू बोलते हैं कहते चांद नजर आई, क्योंकि पश्तो में चांद जो है वो मुअन्नस है, उर्दू में मुजक्कर है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर ये है कि बस टेक इट एज इट इज,
लर्न इट, यूज इट करेक्टली। खामखा जो है उसमें हड्डियां मत ढूंढो। नाउ another example, why it is the problem here, one of these men wear a blue shirt. प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम जो है इसलिए है कि ये जो वर्ब है और सब्जेक्ट है ये सेपरेट है, एक दूसरे से दूर है। आई गो, ही गोज। इसके समझ इसलिए आती है कि भाई आई और गो इकट्ठे हैं, ही और गोज इकट्ठे हैं, तो बंदा कंफ्यूज नहीं होता, गलती नहीं करता। या तो वन शुरू में है और वियर सेंटेंस के तकरीबन आखिर में है, तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस। कि जब किसी जुमले में सब्जेक्ट और उसके जो वर्ब है वो एक दूसरे से दूर हो, सेपरेट हो, इकट्ठे ना हो। इकट्ठे होते तो फिर बंदे को समझ आ जाती है कि यार मैंने क्या करना है। उधर से मेन दरमियान में आ जाता है, मेन भी सब्जेक्ट है, तो इस वजह से गलती होती है। इसके लिए एनालिटिकल स्किल्स, 2 अंकों को 5 करना पड़ता है। अच्छा, सम टाइम वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। आई रीड, सिंपल सी बात है भाई, आई है तो रीड है, ही है तो रीड्स है। मैंने पहले आई लिखा तो उसके बाद एग्रीमेंट क्या है, रीड। मैंने ही लिखा तो एग्रीमेंट क्या है, रीड्स। ये तो अंडरस्टूड है। दूसरा केस तब होता है व्हेन वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। अभी हमने सब्जेक्ट जो है इस्तेमाल ही नहीं किया है और वर्ब आ जाता है, तो यहां भी गड़बड़ हो जाती है। मसलन देयर इज मैनी सिचुएशंस, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, देयर आर मैनी सिचुएशंस। देयर आर मैनी सिचुएशंस, क्योंकि सिचुएशन जो है वो प्लूरल है, लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा इज जो है वो पहले आ गया, वर्ब पहले आ गया और उसका सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ गया। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई सिचुएशन अगर प्लूरल है, देयर आर, मैनी आ गया तो इसका मतलब वो प्लूरल है। So there is situation, there are many situations. इसमें वर्ब क्या है, is. is जो है वो है सिंगुलर है, या are जो है वो प्लूरल है, लेकिन सिचुएशंस बाद में आ गई है, क्योंकि हम आदि होते देयर इज लगाते हैं हर चीज के साथ। Some verbs have, some subjects have s, but they are singular. नंबर 3 गलती हम कहा करते हैं, subjects appearing plural but actually they are singular. ये भी गलती होती है। फिजिक्स, अब फिजिक्स जो है आखिर में एस है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, नॉट फिजिक्स आर, फिजिक्स इज। बंदा जल्दी में जब एस देखता है, कह रहे ये तो प्लूरल है तो आर लगाओ, तो आप आर नहीं लगा सकते, हालांकि ये लगता प्लूरल है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, there are 2 or more nouns as subject. There are 2 or more nouns as subject. एक नाउन नहीं होता या एक प्रोनाउन नहीं होता। I read, she reads, ये तो सिंपल सी है, लेकिन कभी 2-3 प्रोनाउन होते हैं
2-3 नाउन्स होते हैं तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सारा, आयशा एंड फातिमा आर माई स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं कि भाई यार ये तो फातिमा आखिर में आ गया तो मैं आर इज लगाऊं। अब ये 3 है तो इस वजह से मैं आर लगाऊंगा, मैं आखिरी को नहीं देखूंगा कि जी फातिमा इज माई स्टूडेंट। अच्छा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस मेक्स अनदर प्रॉब्लम। इनडेफिनेट प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउन जो होते हैं वो इनडेफिनेट होते हैं, क्लियर नहीं होता। तो when they act as subject, so we have to be very careful. Everyone, all, nobody, many, anyone, none, these are indefinite pronouns. एक तो डेफिनेट प्रोनाउन है, मैं पता है कि भाई मालूम है, लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं इसका मालूम पता नहीं चलता ये कौन है, कितने है, कैसे है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मसलन एवरीवन, ऑल, नोबडी, मेनी, एनीवन, नन, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब ही का तो हमें पता चलता है कि जी ही है, कोई लड़का है, मर्द है, मालूम है। एवरीवन का क्या पता चलता है, क्या है? ऑल, ऑल केम, तो हमें क्या पता ऑल कौन है? नोबडी, मेनी, एनीवन, नन। तो यहां हम ज्यादातर जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। मसलन एवरीवन गेट्स लेसन्स, एवरीवन गेट्स लेसन्स, एवरीवन गेट्स लेसन्स। अब हमें अपरेंटिव लगता है कि यार एवरीवन तो बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो इसके लिए मैं गेट लगाऊं। नहीं, एवरीवन के साथ क्या आएगा? गेट्स आएगा, GETS, गेट्स आएगा। एंड सब्जेक्ट विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब सब्जेक्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, तो फिर वहां जो है मसलन नाइदर नॉर, आइदर और, तो वहां लास्ट को देखा जाएगा। अब ये एक स्पेशल रूल है, सब्जेक्ट विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक नाइदर नॉर, आइदर और, so we will see the last subject. Neither my friends nor my relatives come today. तो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स प्लूरल है तो मैंने कम लिखा। नाइदर माई फ्रेंड्स नार माई रिलेटिव असलम कम्स टुडे। तो नाइदर नार, आइदर आर में जो आखिरी सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। These were some of the examples of subject-verb agreement. Now, what is the clue? What is the key to master this difficult relationship? ये है आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। मतलब लोग तो आम चीज में भी गलती करते हैं। पाकिस्तान requires, because Pakistan is third person singular like he, she or it. हमारे दिमाग में ये चीज तो समझ आ जाती है
कि आई गो, ही गोज, इस हद तक तो क्लियर हो जाता है। लेकिन जब इट आता है, पाकिस्तान आता है, कंट्रीज आते हैं, मैं आपके करंट अफेयर्स में या ऐसे में देखता हूं, उधर फिर आप लोग गड़बड़ कर लेते हैं। तो पाकिस्तान चूंकि इट है, इट IT, तो इसका वर्ब कहा होगा, ही शी जैसा होगा। कंट्रीज जो है उसका वर्ब किस तरह होगा, दे की तरह होगा। दे आर कमिंग, ही इज कमिंग। ये देखना होगा बहुत ज्यादा कि भाई एनालिटिकल, कि भाई ये इट है या ही शी है या दे है। तो पाकिस्तान रिक्वायर्स, कंट्रीज रिक्वायर। बहुत गलती आप लोग करते हैं इसमें, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, हद से ज्यादा। तो पाकिस्तान जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जिस तरह के ही के साथ रिक्वायर्स आता है, ही रिक्वायर्स, पाकिस्तान रिक्वायर्स, दे रिक्वायर, कंट्रीज रिक्वायर। अब हमारे मुसीबत के कंट्रीज में हम एस देखते हैं तो उधर भी एस लगाते हैं, कंट्रीज रिक्वायर्स। क्योंकि ये एक अजीब चीज है कि भाई जो नाउन है उसमें एस लगा के वो प्लूरल हो जाता है, वर्ब में एस लगा के वो सिंगुलर हो जाता है। मतलब ही राइट्स, तो उसमें एस है। दे राइट, उसमें एस नहीं है, हालांकि दे जो है वो प्लूरल है, तो उधर एस लगाना चाहिए था, दे राइट्स होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अब ये जो है सारा इंग्लिश का कमाल है, एक वाहिद जो आई है, आई वो दे की तरह चलता है। आई गो होता है, आई गोज नहीं होता। तो हालांकि आई सिंगुलर है, लेकिन ये दे यू वी वाला वर्ब लेता है। तो ये जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं और वर्ब आ जाता है, और वर्ब आएगा, वर्ब के बगैर तो आप सेंटेंस लिख नहीं सकते। तो जब वर्ब आ जाता है तो थोड़ा सा रुको शुरू में कॉन्शियसली, बाद में आपकी आदत बन जाएगी। जब भी आप अंग्रेजी लिखते हैं और आपकी उंगलियों से वर्ब आप लिख रहे हैं, उधर थोड़ा सा सोचो कि ये वर्ब किस तरह का सब्जेक्ट लेगा, या कौन से सब्जेक्ट के लिए मैं ये वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर थोड़े से आपने कोशिश की तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला हल हो जाएगा, और इससे आपकी तमाम बहुत सी करेक्ट मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो जब भी आप वर्ब लिखते हैं तो वर्ब पे थोड़ा सा सोचो कि ये वर्ब मैंने ठीक लिखा कि गलत लिखा, ये वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए है, वो सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फिर आपके जो है ये कहानी ठीक हो जाएगी। So please, I have given you a lot of information on subject-verb agreement. You can Google more, and whenever you write verb, be very conscious, very cautious. आपका verb गलत ना हो। अगर verb आपका ठीक हो गया तो बाकी चीजों में हम गलतियां नहीं करते। बाकी में तो हम स्पेलिंग बिलिंग की गलती करते हैं या आगे पीछे। ज्यादातर गलतियां वर्ब में होती है, क्योंकि वर्ब हर सेंटेंस में मौजूद होता है। वर्ब के बगैर सेंटेंस है ही नहीं। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ बिग चैलेंज, एंड I hope that you will meet this challenge and you will never make any mistake while writing any verb. Whenever you write a verb, be conscious. I should not make mistake in verb. बाकी गलतियां कवर हो जाती है. Other mistakes are not so complicated. Verb mistakes are very complicated.
All the best. Take care.